صاحب, دیگر وزراء, ہمارے نوجوان فلم میکرز اور تمام معزز مہمانان گرامی, السلام علیکم. نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول کی اس اپنی نوعیت کی پہلی تقریب میں آپ سب کی شرکت پر آپ کا بے حد مشکور. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں آج کل پرسیپشن کو ہی ریالٹی مانا جاتا ہے. لوگ تصویر سے ہی تصور بناتے ہیں. دنیا کا ہر ملک اپنی پرسیپشن مینجمنٹ پر آج کل بہت زیادہ کام کر رہا ہے. وطن عزیز پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کی طویل اور صبر آزما جنگ کا سامنا رہا. ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں نے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی وقار اور تشخص کو بھی بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ آج جبکہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ کو تقریباً جیت چکے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنائیں اور اپنے پاکستان کی ریالٹی کے ساتھ الائن کریں. پاکستان کی ریالٹی, پاکستان کی حقیقت بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہے الحمدللہ. نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. الحمدللہ پروردگار نے پاکستان کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے. پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جس کے 60% سے زائد آبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے قابل فخر نوجوانوں ہی کو اصل پاکستان دکھانے کی ذمہ داری سونپیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا سکیں. نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پاکستان کے قابل, محنتی اور باصلاحیت نوجوان فلم میکرز نے ایسے موضوعات پر تھیم بیسڈ شارٹ فلم بنائی ہیں جن سے پاکستان کا پازیٹیو امیج انشاءاللہ انتہائی مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے لایا جا سکے گا. اس سے نہ صرف باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ پاکستان کے میڈیا کو نیا ٹیلنٹ بھی ملے گا. نومبر 2020 میں ہم نے اس فیسٹیول کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی. پورے پاکستان سے 72 یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کیا. اس فیسٹیول کے لیے برانڈ ایمبیسڈرز بنائے اور یہ برانڈ ایمبیسڈرز کہیں بذات خود یونیورسٹیز میں جا کے اور کہیں کورونا کے باعث ویبینارز کے تھرو اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتے رہے. اس دوران تمام تعلیمی اداروں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی 100 کوالٹی شارٹ فلمز ہمیں موصول ہو گئی. اب مرحلہ آیا اس کی جیوری بنانے کا. ہم نے پاکستان کے مایہ ناز پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی اپنی جیوری میں شامل کیا. ان جیوری ممبرز نے نہایت ذمہ داری اور امپارشیلٹی اور باریک بینی کے ساتھ تمام بلز کو جج کیا, ان کا بغور جائزہ لیا اور نہایت شفاف طریقے سے نتائج مرتب کیا. یہاں میں فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب فواد چودھری صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس انیشیٹو کو دل کھول کے سراہا اور اس کی سرپرستی کی. میں یہاں چیف ایگزیکٹو آفیسر افینٹی جناب ضیاء چشتی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے آج کہ اس سال انشاءاللہ جیتنے والے پہلے 15 جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں اسکالرشپ پہ 1 سال کی ایڈوانس فلم میکنگ کی ٹریننگ حاصل کریں گے اور واپس آ کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں ایک کوالٹی ایڈیشن ہوں گے. میں ان تمام برانڈ ایمبیسڈرز اور تمام جیوری ممبرز کا بھی خاص طور پر شکر گزار ہوں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہے. اس کے علاوہ نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول کے کریٹو مینٹور پروفیسر ماجد سعید صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ موجود رہے. آج کے یہ ایوارڈز ان تمام لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے.
آخر میں ایک بار پھر میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا خصوصی طور پر ممنون ہوں کہ آج یہاں تشریف لا کر انہوں نے پاکستان کے نوجوان فلم میکرز کو عزت بخشی۔ درختوں سے توڑ کر پھل کھانا تو سب جانتے ہیں، لیکن زندہ معاشرے وہ ہوتے ہیں جو ان پودوں کی آبیاری بھی کرنا جانتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ان لہلہاتے نوجوانوں کو سیراب کریں تاکہ یہ تناور درخت بنے اور کل کو پاکستان ان کے ثمرات اور ان کی چھاؤں سے محظوظ ہو سکے، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی سی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا انسداد دہشت گردی کی جنگ تقریباً پاکستان جیت چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے اور پاکستان کی آبادی کا تقریباً 60% سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس پلیٹ فارم سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا کے سامنے نکھر کر آئے گا۔ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کے تحت نوجوان شارٹ فلمز بنائیں گے۔ کہانی چاہے پاکستان کے کھلتے ہوئے رنگوں کی ہو یا ماضی کے دریچوں سے جھانکتی وادی سندھ کی برسوں پرانی تاریخ کی، کہانی چاہے ہماری ثقافت کی ہو یا ایک دوسرے کا سہارا بنتے انسانوں کی، کہانی چاہے لہلہاتی فصلوں کی ہو یا کارخانوں میں روشنی بکھیرتے محنت کشوں کی، کہانی سنانا اور سننا ہمیشہ سے ہی ایک خوبصورت کام رہا ہے، اور اگر یہ کہانیاں سچ پر مبنی ہوں تو سیدھا دلوں کو اثر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ماہرہ۔ خواتین و حضرات، نہ صرف ایک فلم فیسٹیول ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم پاکستان کی کہانیوں کو پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ مگر نصف کی اپنی ایک کہانی ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا اب تک کا سفر کیسے گزرا، یہ سب دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے ویڈیو پیکیج میں۔ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، بہت ہمارا ینگ ٹیلنٹ بہت سامنے آیا ہے۔ آئی تھنک اتنی اچھی اپرچونٹی پاکستان میں فلم میکرز کے لیے ابھی تک تو نہیں تھی۔ اس پلیٹ فارم پہ نہ صرف وہ جو شاید ونرز ہوں گے، وہ جو حصہ بھی لیں گے وہ بھی بہت کچھ سیکھ کے نکلیں گے۔ انوائرمنٹ اینڈ ایٹماسفیئر، اور اگر یہ نیشنل لیول پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے ینگسٹرز کو تو نتھنگ لائک اٹ۔ آئی تھنک ہر کسی کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ category for films made on your phones. I think that's really special. ایک انیشیٹو ہے، ایک آغاز ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ یوتھ کو بہت زبردست مواقع ملے۔ Sure their craft, so it's really good and it's much needed. ضرورت ہے اس وقت۔ You know, not just to the international world, you know. Exactly. Obviously, this is an image for the world, but even for us. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سب کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سب کے دلوں میں، ہماری یوتھ کے دلوں میں وہ کتنی انرجیٹک ہے، کتنا فلیئر ہے ان میں۔
ख़वातीनो हज़रात, नस्ब एक सोच थी, एक ख्याल था जिसका बीज तो ISPR ने बोया, मगर इसको तनावर दरख्त बनाने में वजारत इत्तलात और नशरियात का भी काबिल जिक्र हिस्सा है। जनाब फवाद चौधरी साहब की सरपरस्ती के बगैर शायद ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। मैं दावत दूंगा वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब को, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Federal Minister of Information and Broadcasting, Mr. Fawad Chaudhry. प्राइम मिनिस्टर साहब, DG ISPR, हमारे सारे बाकी दोस्त, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें ये बिल्डिंग दी 2018-19 में, और तकरीबन एक 6-7 साल के बाद ये बिल्डिंग बनने के बाद मुकम्मल तकरीबन बंद पड़ी हुई थी। तकरीबन बंद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ कुछ एग्जीबिशंस हो रही थी, इसके अलावा सारी बिल्डिंग जो थी ये बंद पड़ी हुई थी। और आपने जब हमें ये बिल्डिंग दी तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अगस्त में, जबकि हमारा 3 साल पूरे होने जा रहे हैं PTI हुकूमत के, तो उस वक्त हम आपको ज़हमत देंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की पहली मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इस बिल्डिंग में आप उसको इनॉग्रेट करेंगे। जो बात हमने आपसे सीखी है और आपने हमें ये बताया है कि जो मौजूदा दुनिया है, जो मॉडर्न दुनिया है, ये ओपिनियंस की दुनिया है, और हमारी जो मॉडर्न जंगें हैं वो ओपिनियंस की जंगें हैं, नैरेटिव की जंगें हैं, बयानिए की जंगें हैं। और ये कि हमारी जो ओपिनियन है उसको कितनी पजीराई मिलती है दुनिया में, और हमारे अपने लोगों में, वही तय करेगा कि इस जंग में जीतेगा कौन। और मीडिया जो है वो हमारी रियासत का और दुनिया भर की रियासतों के पास एक बहुत अहम टूल है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपने नैरेटिव को बनाने के लिए। हमने जिस किस्म की जोग्राफियाई सूरत हाल का हमें सामना है, जिस किस्म का खित्ता हमारे यहाँ है, उसको जिस तरीके से हमने यहाँ पर वो जंगें लड़ी, हम उनको माजी में उस तरह से बयान नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारा जो इतनी शहादतें भी हमने दी, उसके बाद भी आज दुनिया जो है उसमें हमारी उन शहादतों का, उन कुर्बानियों का तज़किरा उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ओपिनियंस के ऊपर तवज्जो नहीं दी, हमने वॉर ऑफ ओपिनियन के ऊपर अपनी जो तवज्जो है उसको हटाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी क़यादत में हम पाकिस्तान का एक पूरा जो मीडिया नैरेटिव है उसको हम तब्दील करने का, इस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम तब्दील कर रहे हैं। हमने जो APP हमारी जो न्यूज़ एजेंसी है, हमारा जो रेडियो है, हमारा जो टेलीविजन है, इंशाल्लाह जैसा कि PTI ने वादा किया था कि हम इसको तब्दील करेंगे, तो इंशाल्लाह 14 अगस्त को या उससे पहले जब भी हमें आपके ऑफिस ने टाइम दिया, इंशाल्लाह आप इन तीनों को आकर यहाँ पर ही डिजिटलाइज करने का आगाज करेंगे और इंशाल्लाह PTV विल गो HD ऑन 14th अगस्त। और इसी तरह से जो रेडियो होगा और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा, उसकी फोन ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा, और एक मॉडर्न रेडियो हम जो है इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत में
लेकर के आएंगे। सो ये जो एक फेस्टिवल है, ये शॉर्ट फिल्म का फेस्टिवल है। शॉर्ट फिल्म ISPR, DGISPR बैठे हैं, इनकी टीम बैठी है, बहुत ही डेडिकेटेड इदारा है और हमारी खुशकिस्मती है जनरल आसम बाजवा साहब भी बैठे हैं। ये तमाम जो ISPR का एक पैराफर्नीलिया है, उसने एक पूरी कोशिश की है पाकिस्तान में मॉडर्न जहतें, जो मॉडर्न साइड है मीडिया की, उसको लाने की। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जब फिल्म एक्चुअली सर जब बनना शुरू हुई थी तो उस वक्त भी शॉर्ट फिल्म ही थी, क्योंकि शुरू में फिल्म का जो दौरानिया था वो 1 मिनट से कम था। उसके बाद जब एडिसन ने सिनेमा ईजाद कर लिया तो उसके बाद फिल्म का दौरानिया बढ़कर 10 मिनट हो गया और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर फिल्में तवील होती गईं। बट दिलचस्प बात यह है कि जो ही टेक्नोलॉजी आगे गई है, फिल्म का दौरानिया कम होता गया है। और अब जो इंटरनेशनल मोशन पिक्चर की डेफिनेशन है उसके मुताबिक शॉर्ट फिल्म का मतलब है 40 मिनट से कम की फिल्म। लेकिन अगर हम अपने जो डिजिटल मीडिया की ऊपर देखें तो जो शॉर्ट फिल्म है वो तो सेकंड्स की भी है। जो सबसे बड़ी दुनिया की ऐप है टिकटॉक, उसके ऊपर तो फिल्म जो है वो 40 सेकंड का एक टुकड़ा है। सो कंसंट्रेशन हमारी, चूंकि कंसंट्रेशन का जो हमारा मामला है वो कम होता जा रहा है, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो फिल्म मेकर्स को भी ये सोचना पड़ रहा है कि हमें लंबी फिल्में बनाने के बजाय शॉर्ट फिल्में जो है वो बनानी है। अब शॉर्ट फिल्म्स में यहाँ पर जो हमारा एक ट्रेडिशनल 1970 की दहाई तक तो हम वैसे ही दुनिया की तीसरी बड़ी कौम थे जो फिल्में बनाती थी, तीसरी बड़ी प्रोडक्शन थी हमारी फिल्मों की। अनफॉर्चुनेटली 2005 में हम जीरो के ऊपर आ गए और उसके बाद कुछ थोड़ी बेहतरी आई, बट ये कोविड की वजह से हम दोबारा इस साल सिर्फ 2 फिल्में हम बना सके हैं, जिसकी वजह से हमारा सिनेमा बिजनेस एक बिल्कुल खसारे में चला गया। और अब हम उसको आपकी जो VN है उसके मुताबिक उस फिल्म का, सिनेमा का बिजनेस जो है उसको भी बड़ा करने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, जिसमें आपने फिल्म पॉलिसी जो है उसकी आप अप्रूवल दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो कराची में अनाउंस करेंगे। उसके बाद सिनेमा के लिए हम ला रहे हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जो है सर वो हमारे पास नहीं था। हमारे पास लोग जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं, लाइट्स, कैमरा, साउंड, ये जो टेक्निकल हमारे नॉलेज हैं फिल्म के, वो हमारे पास जदीद दुनिया के नहीं है। उसके लिए हम इस जगह के ऊपर जो मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी UK, उसमें हमारा पार्टनर है और जो दुनिया में एनिमेशंस में, विजुअल इफेक्ट्स में दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा नाम है, उसको हमने अपना पार्टनर किया है। इसी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर जो हमारा इस वक्त चल रहा है, जिसमें ड्रामा लिखना, डांस, म्यूजिक, ये सारे जो फनून लतीफ़ा के हैं, उनके लिए हम नैपा के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसी तरह से फिल्म स्कूल जो है वो हम बना रहे हैं कराची में। और इसी तरह से जर्नलिज्म, हमारे 42 स्कूल हैं जो जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, लेकिन तमाम जो उनका फोकस है वो पिछले जर्नलिज्म के ऊपर है, मॉडर्न जर्नलिज्म के ऊपर नहीं है। इंशाल्लाह सर आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान एक इंशाल्लाह नया पाकिस्तान होगा। और जब हमारा इंशाल्लाह ताला ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और शॉर्ट फिल्म आप तो लंदन से देखते हैं कि एक आदमी जो प्रोटोकॉल में यहाँ पे फिरता था वहां पे गाड़ी रोकता हुआ आपको नजर आता है। इसी तरह की फिल्में जो हैं उससे ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है और हमें पता भी चलता है कि क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक नया पाकिस्तान, हम आपने जो कौम से वादा किया है, इंशाल्लाह आपने सारे वादे पूरे किए हैं और ये वादा भी इंशाल्लाह पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नस्फ पाकिस्तान का कौमी सतह पर वाहिद फिल्म फेस्टिवल है जिसमें टॉप 15 पार्टिसिपेंट्स को एडवांस फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए बैरून मुल्क बेहतरीन फिल्म स्कूल में भेजा जाएगा। हाउ लकी। मायरा, ये सुनने के बाद मेरा जी चाह रहा है काश कि मैं भी स्टूडेंट होता और स्कॉलरशिप पे बाहर फिल्म मेकिंग पढ़ने जाता। सच तो ये एहसन कि मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों के लिए इट्स टू लेट। It's never too late for you, Myra. You know that.
Okay, then one scholarship for Yes, me too. for sure. जनाब आगे बढ़ते हैं. बहरहाल यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनामात उनको जो दिए जाएंगे वो हम ही अनाउंस करेंगे कि कौन स्कॉलरशिप पे बाहर जाएगा, किसको यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे. जी जी बिल्कुल हम ही अनाउंस करेंगे. तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं? And by the way, I would like personally to request all of you to clap for our students जो यहाँ बैठे हुए हैं. Wonderful. इन्होंने बहुत मेहनत की है और उसकी एक झलक आप अभी देखेंगे. उसके बाद हम winners अनाउंस करेंगे. So ladies and gentlemen, let's watch the best of the award-winning films. I am the city of magic, the city of wonders, the city of wisdom, power, and culture, the city of extraordinary history and extraordinary people. You all are explorers here, searching for something meaningful, something extraordinary, something powerful. And any exploration is a journey, a series of questions. I am Wall City. Ronald, until we reach the office, let me show you Pakistan. मेरी आँखों ने देखे गए अजब मंजर यहाँ कर, मेरी आँखों ने देखे गए अजब मंजर यहाँ कर, यहाँ नाराजगी से भी मोहब्बत ही छलकती है, यहाँ चश्मे मोहब्बत के, यहाँ गुलशन है उल्फत के, कहाँ फिरते हो है नादान, कभी आओ ना पाकिस्तान. सर कोयटा. हाँ कोयटा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है वहाँ पे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. कल 3 बजे की फ्लाइट है, मिस मत कर देना. सर आई नेवर मिस माय फ्लाइट्स. और हाँ, लाइफ जितनी भी परफेक्ट चल रही हो, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता. फुलफिराए को तो हल्का कट लगा है, और फिराए हाफ तो पूरा बच गया है, गिरते ही तवे पे उठा दिया गया है, ऑमलेट को तो जला दिया गया है, और पिला दिया गया है गर्म. ऑमलेट जिंदगी हो न पाई सेठ जिंदगी, ऑमलेट जिंदगी. कुदरत का एक अपना निजाम है. देखने वाली आंखें अगर देखें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है. मैं भी इन रंगों को देखता हूँ, ये जो असली रंग हैं कुदरत के, और इन रंगों को मैं एक पहचान देता हूँ, एक नाम देता हूँ, जिसे देखने वाले ट्रगार्ड कहते हैं.
7 साल का था जब वाले साहब ने हाथों में ब्रश पकड़ाया। कभी सोचा नहीं था कि लोग इन हाथों को मैजिक हैंड कहें। Wow, this was brilliant, Myra, wasn't it? दिल खुश हो गया, बिल्कुल, है ना? Okay, so now it's time. अब वक्त आ गया है उन खुश नसीब नौजवानों के नाम अनाउंस करने का जिन्होंने नस्फ 2021 में पार्टिसिपेट किया और स्कॉलरशिप अवार्ड्स हासिल किए। जी हाँ, मैं दरख्वास्त करूंगा आज की तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जीतने वाले नौजवानों के दरमियान अवार्ड तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई करें। आपकी भरपूर तालियों में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। Thank you, sir. Thank you very much. सबसे पहले नस्फ 2021 की अंडरग्रेड कैटेगरी के विनर्स को अवार्ड दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अंडरग्रेड कैटेगरी में 3rd पोजीशन हासिल किया है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमजा बिन इफ्तिखार की फिल्म रंगीन ने। सेकंड पोजीशन कनेड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर की स्टूडेंट अकीदत चिश्ती की फिल्म पठानी ने। And please put your hands together for the first position यावर शाह जिनकी फिल्म का नाम है दीदावर। जनाब अब वक्त हुआ है स्पेशल फिल्म कैटेगरी अवार्ड का। 3rd पोजीशन हासिल की है यारकोट गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वलीम अब्बास की फिल्म अ ग्लेशियर मैरिज। सेकंड पोजीशन हासिल की है रूही काशिफी की फिल्म ताना बाना ने। रूही काशिफी का ताल्लुक पारा चनार से है और लाहौर में अपनी फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिस जारी रखे हुए। स्पेशल फिल्म कैटेगरी अवार्ड में पहली पोजीशन हासिल की है वलीद अकरम की फिल्म द डिस्कसफुल ने। बारी है मोबाइल फिल्म कैटेगरी अवार्ड्स की। मोबाइल फिल्म कैटेगरी में मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम की फिल्म द टॉर्च बेरर ने 3rd पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन हासिल की है सैयद मोहम्मद हैदर शाह की फिल्म हिस्ट्री ने। सैयद मोहम्मद हैदर शाह का ताल्लुक पेशावर से। मोबाइल फिल्म कैटेगरी में जिस फिल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले नसीर अहमद और उनकी फिल्म का नाम है द ड्राउट फाइटर। और जनाब एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है जी माया। लेडीज एंड जेंटलमैन अब बारी है एक खास अवार्ड की। एक ऐसा अवार्ड जो नस्फ 2021 के सबसे कम उम्र पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है। द यंगेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड हासिल किया है हैदराबाद की 12 साला सबा फातिमा ने। वंडरफुल।
हमारी नन्ही सी फिल्म मेकर सबा की फिल्म का नाम है हैदराबाद, द हार्ट ऑफ मेहरान। कंग्रेचुलेशन सबा। ख़वातीनो हज़रात, नस्फ 2021 को कामयाब बनाने में एक शख्सियत का बहुत ही अहम किरदार है। मैं दावत दूंगा जनाब ज़िया चिश्ती साहब, CEO एफिनिटी को, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और एजाज़ी शील्ड वसूल करें। Thank you very much. Thank you. अब मैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो हम सब के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जनरल इफ्तिखार बाबर आपको और ISPR को मैं ख़ास तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो आपने ये शॉर्ट फिल्म्स का फेस्टिवल रखा और ये जो स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम किया, तो मेरे ख्याल में कि ये एक नई बिगिनिंग है पाकिस्तान में। मैं ये सोचता था कि एक दिन हम इस तरफ निकलेंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये देख के भी, ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, कि ये हम अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। फौज चौधरी, आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो अब पूरा फिल्म्स के ऊपर और टीवी के ऊपर अब जो एक नई सोच आप लेके आए हैं, तो आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। ज़िया चिश्ती, आपको कि आपने स्पॉन्सर किया ये इवेंट और ये स्कॉलरशिप्स जो कि UCL में जा रही हैं, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैं दो चीज़ें आज कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तकरीबन पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इसकी एवोल्यूशन देखी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, और मेरे ख्याल में कि हम शुरू में गलत जाना शुरू हो गए, क्योंकि हम इतने मुतासिर थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कि बेसिकली हमने उनको कॉपी करने शुरू कर दिया। तो बजाय एक पाकिस्तानियत, एक हमारा अपना सोच निकलती, एक ओरिजिनल सोच निकलती, बेसिकली हम एक दूसरे कल्चर, दूसरी फिल्म और फिल्म से एक पूरा कल्चर आता है, उसको हमने अनक्रिटिकली, यानी बजाय उसको सही मारे में उसका जायजा लेते, एनालाइज करते, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। और वो वजह भी ये थी कि एक वक्त पे लोग 60s की मैं बात कर रहा हूँ, 70s की, कि लोग काबुल जाते थे हिंदुस्तानी फिल्म देखने के लिए, और वो सारा रेडियो पे वो गाने, तो उसकी वजह से सोच ये थी कि वो एक बेहतर इंडस्ट्री है और हम अगर उसको कॉपी करेंगे तो यहां भी हमें लोग देखेंगे। जबकि हमारा जो टीवी था उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कल्चर आना शुरू हो गया और हमारा टीवी हिंदुस्तान में देखा जाता था, और मैं बात कर रहा हूं 60s 70s तक। तो जो मैं नंबर 1 पॉइंट अपनी ये जो हमारे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं और ये जो जिन्होंने स्कॉलरशिप्स भी जीती, तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको ये कहना चाहता हूं, कहते दुनिया के अंदर जो मेरा तजर्बा है, सिर्फ ओरिजिनलिटी बिकती है, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती। महंगी से महंगी आप एक पेंटिंग ले लें, उसकी कॉपी कर लें, अच्छी से अच्छी कॉपी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ दुनिया ओरिजिनल को वैल्यू करती है। नुसरत फतेह अली खान, मैंने शौकत हनफ कैंसर हॉस्पिटल बनाना था, तो मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था,
पाकिस्तानी कम्युनिटी से पैसे इकट्ठे करने के लिए, और अमेरिका भी ले जाता था। तो क्योंकि मेरी वाकफियत थी बड़े बड़े वहाँ के उस वक्त के पॉप स्टार्स, मिक जैगर और पीटर गैब्रियल, स्टिंग, इन लोगों को मैं जानता था, तो मैंने इनको कई दफ़ा दावत दी अपनी डिनर्स के ऊपर जिधर नुसरत फतेह अली खान परफॉर्म करते थे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो सारे ही नुसरत फतेह अली खान के फैंस बन गए। लेकिन मैंने और भी हमारे लोकल पॉप स्टार्स, पॉप सिंगर्स थे, उन्होंने भी मुझे कई दफ़ा कहा कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊं, लेकिन इनकी बदकिस्मती से, क्योंकि वो मगरबी बैंड्स की कॉपी करते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू सिर्फ नुसरत फतेह अली खान की थी, और बदकिस्मती से अगर उनकी वफात ना होती तो वो एक बहुत बड़ा नाम मगरब में बनने लगा था, क्योंकि उनको सारे उनकी जो स्किल्स, उनकी जो आर्ट थी, वो बड़े रिस्पेक्ट करते थे उसको, और उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी दुनिया में। तो बदकिस्मती से उनकी 97 में वफात हुई, और ये आज एक बहुत बड़ा हमारा दुनिया में नाम था जो रह गया। मेरा तजर्बा क्रिकेट से, तो मैं जब पहली दफ़ा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के साथ गया मैच खेलने, तो मुझे याद है मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे कहते थे, टूर के ऊपर कहते थे कि हम अंग्रेज से नहीं जीत सकते, हम सिर्फ सीखने आए हैं उनसे। और वो इतना उन दिनों में कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था हमारे मुल्क में, क्योंकि नई नई आज़ादी हुई थी तब, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स था अंग्रेज का कि हम टूर से पहले, जाने से पहले हार चुके थे, क्योंकि वो सोच ये थी कि हम ये इतने ज़बरदस्त है, इनकी टेक्निक ऐसी है, ये इनकी क्रिकेट इतनी अच्छी क्वालिटी, हम इनसे नहीं जीत सकते। तो जीते हुए मैच हम हार जाते थे। तो इवेंचुअली हमने जब जीतना शुरू किया तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज, एक चेंज आया। पहले चेंज ज़हन में आया, एक सेल्फ बिलीफ आई कि हाँ नहीं, हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर ग्राउंड के ऊपर हम जीतना शुरू हुए, और फिर शुरू में हम उनको कॉपी करते थे, जो उनकी टेक्निक से उनकी कॉपी करते थे, सब चीज वो समझते थे कि हमारे से सुपीरियर है। लेकिन जब हम जीतना शुरू हुए तो हमने अपनी नई हमने टेक्निक से इजाद की, जो दुनिया ने बाद में फॉलो की, जिस तरह रिवर्स स्विंग थी, कभी दुनिया में पहले समझ नहीं, हमने वो आर्ट डेवलप किया था। हमने जो वनडे क्रिकेट के अंदर बिल्कुल एक नई टेक्निक लेके आए थे, एक नई अप्रोच, वो कभी पहले नहीं थी मॉडर्न डे क्रिकेट में, कि स्पिनर्स हम लेके आए और लेग स्पिनर से, और फिर हम अटैक करके विकेट लेके वनडे मैच जीते थे, जो वर्ल्ड कप जीते थे। तो दुनिया ने फॉलो किया हमें। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, मैं ये चाहता हूं कि वो एक उनके अंदर एक ओरिजिनलिटी आए, अपनी नई सोच लेके आए। मैं जब शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने बड़ा, क्योंकि ये जो इसी चीज के ऊपर मैंने बात की कि हमारी फिल्म्स के अंदर ओरिजिनल कंटेंट कम है, हम मुतासिर हैं या मगरब से या बॉलीवुड से या हॉलीवुड से। तो मुझे बार बार ये कहा गया कि यहाँ लोग देखते नहीं, अगर हम अगर वो इस तरह का कमर्शियल कंटेंट नहीं लेके आते जो हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और वो उसके अंदर ये बड़ा जो वल्गैरिटी इसके अंदर बड़ी मेरे सामने जिंदगी में, पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। तो उस वक्त मैंने प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्थोग्रोल ये जो सीरियल है, उनसे मैं लेके आया पाकिस्तान। अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेट कल्चर है, लेकिन वो सेल करता है, लोग देखते हैं उसको। सो मेरा अपने यंग फिल्म मेकर्स को ये है कि अपनी ओरिजिनल, अपनी सोच लेके आए, और इससे घबराए ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये मैं आपको, ये भी मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। हमेशा दुनिया में वो जीतता है जो बड़े बड़ी रिस्क लेता है। कोई भी आज तक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जिसने रिस्क नहीं ली। कोई आज तक बड़ा खिलाड़ी नहीं बना जो हारने से डरता है। कोई बड़ा
मिलिट्री के अंदर जिसको बड़े तगबे नहीं मिले, जो मौत से डरता है। जो खौफ है ना कि हारने का, ये बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है इंसान के पोटेंशियल के अंदर। तो जब हम ये कॉपी करते हैं कि क्योंकि ये ट्रॉडन पाथ है, ट्रॉडन पाथ के अंदर कोई इंसान बड़े काम नहीं करता। एक वो बड़ी अच्छी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेइंग है कि आई चोज द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। ट्रॉडन पाथ के ऊपर कोई आज तक एक्सेल नहीं करता। और मैं जो पाकिस्तान है अब, इसमें मुझे बड़ी अच्छी चीजें नजर आई कि कोशिश इसमें पाकिस्तानी कल्चर आगे लाने की कोशिश की हमारे ये यंग फिल्म मेकर्स ने। ये बड़ा जबरदस्त आप रास्ते पे निकल गए, इसलिए मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि देखें लोगों को पूरी तरह भी अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी वैरायटी, ये कितना डाइवर्स मुल्क है। हमारे बदकिस्मती से बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिकल लोग आए हैं, उनको पता ही नहीं अपने मुल्क का, क्योंकि उनकी छुट्टियां सारी लंदन में या बाहर होती हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने कितनी नेमत है, जो पाकिस्तान है, इसमें क्या क्या उसने चीजें दी हैं। मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूं जिसने सारा मुल्क देखा हुआ है, और मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा इस मुल्क में मनी अर्नर होगा वो टूरिज्म होगी। वो अभी तक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। ना हमारी हिस्टोरिकल टूरिज्म के ऊपर कोई तवज्जो है, वो अब हम दे रहे हैं। ना हमारी रिलीजियस टूरिज्म अब हम तवज्जो दे रहे हैं, मसलन करतारपुर और जो बाकी इंशाल्लाह बाकी भी जो बुद्धिस्ट का सारा सिविलाइजेशन है, ये गंदारा का, ये रिवाइव कर रहे हैं। और जो वर्सेटाइल माउंटेन टूरिज्म है वो दुनिया में कहीं नहीं जो हमारी है। आधे तो दुनिया की जो बड़ी पीक्स हैं और 12 में से तकरीबन आधी तो पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ये सोच लें कि ये कितना इस मुल्क में हमें हम हर चीज उगा सकते हैं इस मुल्क में। आज पाकिस्तान इंपोर्ट करता है चीजें, हमारे पास तो क्योंकि किसी ने तवज्जो नहीं दी, हम हर चीज दुनिया की प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपके पास 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो ये जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, ये बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस मुल्क की वो चीजें आप सामने दिखाएं जो कि दुनिया को नहीं पता। मेरी तरह के आदमी ने सिर्फ 2 ट्रैवल बुक्स इसलिए लिखी क्योंकि मैंने रियलाइज किया बाहर लोगों को पता ही नहीं हमारे मुल्क का। तो जो विजुअल फिल्म से आता है वो और किसी चीज से हम नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। और एक और चीज कि मैं ये कई दफा सुनता हूं ये लफ्ज सॉफ्ट इमेज, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये इसकी मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई। ये बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। तो वो जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस, और यहाँ फंडामेंटलिस्ट है और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। ये एक एहसास है कमतरी से आप ये इस चीज के ऊपर लग जाते हैं। और वो जो कॉइन किया था फ्रेज उस वक्त, एनलाइटन मॉडरेशन, सॉफ्ट इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं तो उससे गुजरा हुआ हूं, मुझे तो तालिबान खान कहते थे उन दिनों में। तो ये एनलाइटन मॉडरेशन क्या चीज थी, अभी तक किसी को इसकी समझ ही नहीं है क्या चीज थी। वो लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटन मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट पहन लूं और अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। लोग, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। जिसमें एहसास है कमतरी, जिसमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो दुनिया को कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने से उसमें एतमाद नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है,
अपने से शर्म आती है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। जो आपने, अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। हर तरह जो, और ये याद रखें कि ये मुल्क एक ऐसे नहीं बना था। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनकी फिलॉसफी अगर आप पढ़ें, वो बड़े अजीम लोग थे, कायद आजम और इलामा इकबाल। इलामा इकबाल जैसा कोई 400-500 साल में मुसलमान ज़हन नहीं आया जो इलामा इकबाल थे। तो उन्होंने क्या किया था? इलामा इकबाल की ग्रेटनेस क्या थी? उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफीज और अपनी फिलॉसफीज का तज्जिया करते हुए ओरिजिनल थिंकिंग लेके आए थे। ये था हमारा, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। और कायद आजम के भी आप सारे जो उनके पढ़ लें, जो उन्होंने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स थी, एंड में आप पता चलेगा वो बड़े ज़हन थे। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपने यूथ के अंदर। मैं समझता हूं कि ये हमारी जो होप है, वो हमारा 60% जो पाकिस्तान का यूथ है, पॉपुलेशन अंडर 30, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारा। ये जो मैंने अभी देखा छोटा सा ये स्टार्टर्स थे, ये शो करता है कि इनमें बड़ा पोटेंशियल है, जो इंशाल्लाह UCLA से ये सीख के आएंगे। ये जो टेक्निकल साइड है फिल्म मेकिंग, वो तो परफेक्ट कर लेंगे। जो कंटेंट्स है वो मैं होप करता हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर आप इधर ढूंढेंगे रियल लाइफ स्टोरीज, और यहाँ बड़ी बड़ी आपको स्टोरीज मिलेंगी। मैं एक आपके सामने विटनेस हूं कि इससे ज्यादा मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और करता हूं हर साल। इससे ज्यादा जेनरस लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे जितनी हमारी कौम है। आखिर में मैं फिर से ISPR और जनरल बाबर आपको बहुत मुबारक देता हूं इसका, और मुझे इंशाल्लाह ये जो आपने इनक्यूबेट किया है, ये जो आपने पौधे उगाना शुरू किए हैं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक वो हमारा प्रोजेक्ट करेंगे जो असल पाकिस्तानियत है, जो अब तक पूरी तरह दुनिया के सामने आई नहीं, और इंशाल्लाह ये हमारा यूथ इसको सही मायने में प्रोजेक्ट करेगा। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, शॉर्ट फिल्म के शोबे की तरक्की के लिए नौजवानों को वज़ाइफ देंगे। ISPR को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया में आइडियाज को पजीराई मिलती है। हमने फिल्म में अपनी सोच की बजाय दूसरों का कल्चर अपना लिया। हमारे TV ने बेहतरीन काम किया जो भारत में देखा जाता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया क्रिकेट में हमने नई नई टेक्निक्स मुतारिफ करवाई। अपनी सोच लेकर आगे आएं और कभी भी नाकामी से मत घबराएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हार से डरने वाला बड़ा खिलाड़ी कभी नहीं बन सकता। सियाहत के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।